Good morning to everyone. Now I am starting. Again I am continuing coordinate geometry and the part of it straight line. Subtopic is angle between two lines, y equal to m1x plus c1, one line, and the second line is y equal to m2x plus c2. Let me see here x-axis, here y-axis, here look here one line, and here you can say here the second line, and I wanted to find the angle between the two lines, that is that here between the two lines angle theta I wanted. Let me see, this I wanted. What is the angle between the two lines? One line is y equal to m1x plus c1, y equal to m2x plus c2. Let this is theta. No, I let me take this is ठीक है, this theta 1 I should take, and here it is theta 2. Okay. In fact, I wanted to find theta. You can say here the exterior angle of this triangle P A and B. In triangle PAB, you can very well say that this theta 1 is equal to theta plus theta 2, right? Yani theta plus theta 2 equal to theta 1. Clear? Why it is? Because this is exterior angle in triangle APB. Clear? The exterior angle equal to the sum of the two interior angles theta plus theta 2. Therefore, here theta equal to theta 1 minus theta 2. Very clear? Right? Then here I am writing tangent of theta equal to tangent of theta 1 minus theta 2. Let me apply the trigonometrical formula that you must have read in trigonometry. Then tan theta equal to, I am keeping it here. Okay. Tan theta 1 minus tan theta 2 upon 1 plus tan theta 1 theta 2. This is the formula. Tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B, the very known formula. And then I am writing here tan theta. I should have written here tan theta. But here tan theta 1 is m1 and m2 is here tan theta 2. Therefore, tan theta can be written as m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, and hence theta is written as tan inverse m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So this is the angle, this is the formula. Theta is tan inverse m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. But I shall use, mostly or anybody will use the formula this one,
tan theta is m1 minus m2 upon 1 plus mn m2, and after getting it, anybody can find theta. ये तो मैंने एक लिख दिया because I wanted to find the angle between the two lines. Therefore, this is the angle, not tan theta. Not tan theta. The angle is theta. If tan theta is coming, say 1, it means not the angle is 1, angle is 45 degree. Tan theta is 1 by root 3, then angle is 30 degree. So we should not be in hurry to say yes, 1 by root 3. Angle is theta. My dear boys and girls, here I wanted to say, look here, I should rub it now. If the two lines are parallel, then if the two lines are parallel, what will be theta? 0. If the two lines are parallel, then that will be here the two lines, then the angle between two lines will be, yes, will be 0. So if the two lines say would have been parallel, you can say, sir, then tan angle will be 0, the theta equal to 0. Then look here, tan theta is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Theta is 0, so 0, tan 0 is 0, equal to right hand side what does it mean? That m1 minus m2 equal to 0, so m1 equal to m2. So if two lines are parallel, m1 equal to m2. If the two lines are perpendicular, then what would be theta? Yes, very good, 90 degree, right? If the two lines are perpendicular, then theta will be, the angle between them will be 90 degree. And you know tan theta, the formula if you use here look here the formula, if we use tan 90, that will be infinity, not defined. So infinity equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. And this can be found only infinity provided denominator is 0. Denominator equal to 0. Therefore, 1 plus m1 m2 equal to 0, and how m1 m2 equal to minus 1. So I came to know first the angle between two lines y equal to m1x plus c1 and y equal to m2x plus c2. We can go and take help of the formula tan theta is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Then theta is, of course, I shall write to tan inverse. If lines are parallel, the angle will be 0. So condition will be m1 equal to m2, and if the lines are perpendicular, theta will be 90. Tan 90 is not defined, that is infinity, and therefore denominator should be made 0, and hence m1 m2 equal to minus 1. So we are coming with the three results.
with the results M1 equal to parallel if M1 equal to M2, I had already written, and perpendicular, then M1 M2 equal to -1. Hope it is being clear. Again I make it orally, I just explain. The angle between two lines will be formulated as tan theta equal to m1 minus m2 upon 1 plus m2. If parallel lines are there, m1 equal to m2. If perpendicular are there, then m1 m2 equal to -1. Now my boys, girls too, don't mind, to find equation of a line parallel to ax plus by plus c equal to 0. इसके हमें पैरेलल चाहिए. तो आप कहेंगे सर इसके पैरेलल तो ये होगा, इसका स्लोप कितना है, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, इसका स्लोप कितना होगा? यस प्लीज ट्राई. इसका स्लोप कितना होगा? यस, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ चेंज्ड साइन, यानी -a/b. तो छोड़ो ना इसको, अभी इतनी जरूरत नहीं जानने की. अगर दूसरी लाइन पैरेलल होगी तो वो भी तो यही ax यही by होगा, क्योंकि उसका भी स्लोप वही होगा. तो इज ax प्लस by इतना ही होगा. ये तो दोनों एक ही होगा. कांस्टेंट बदलेगा, चाहे इधर होगा चाहे इधर, मेरे मर्जी में आप राइट हैंड लिख दिया करो. जो भी होगा वो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. कांस्टेंट चाहे इधर हो कांस्टेंट, चाहे उधर हो कांस्टेंट, इक्वल के बाद है, इक्वालिटी के बाद, दैट विल बी कांस्टेंट लैम्डा. एंड सेकेंड, परपेंडिकुलर टू लाइन इज, अब देखो ध्यान से देखना कि ax प्लस by इसका स्लोप है -a/b. तो उसका ऐसा स्लोप होगा जिसको प्रोडक्ट करें तो -1 आए, यानी उसका होगा -b/a. इसका मतलब ये हो गया कि ये होगा bx है. उसके बाद क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे ax और by के कोफिशिएंट्स को, और साइन चेंज कर देंगे लैम्डा. दिस इज, अब ये आपको दिमाग में बराबर रखना है. ये लैम्डा इसलिए आप सी, आपके बुक्स में सी हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, नहीं हो सकता है, दूसरे मेथड से यूज करें. मेरे समझ से आप कोई भी लाइन हो उसके पैरेलल उसका कांस्टेंट छोड़ दो और बाकी ज्यों का त्यों लिख दो. जरा सा मैं एग्जांपल दूं. व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन टू 3x प्लस 4y इक्वल टू 6? सर 3x प्लस 4y. आगे लैम्डा. व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू px प्लस qy इक्वल टू r? px प्लस qy इक्वल टू लैम्डा. 4x प्लस 5y इक्वल टू 6 का पैरेलल लाइन 4x प्लस 6y इक्वल टू लैम्डा. और परपेंडिकुलर 4x प्लस 6y, यस 6 इधर ले आ दो x का कोफिशिएंट, 4 उधर ला दो y कोफिशिएंट, बीच में अगर प्लस है तो मेक इट माइनस, माइनस है तो प्लस, इक्वल टू लैम्डा. तो दैट वे वी गॉट इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by इक्वल टू लैम्डा, bx माइनस ay. देखना ना, ये b इधर खींचा, a उधर ले आया, प्लस था तो माइनस, ये माइनस होता तो प्लस, एंड दैट्स ऑल. ना ओके, आई शुड ड्रॉप इट नाउ.
Now come to the next one. That I've already told you. Still I once again revive. Length of perpendicular from x1 y1 to ax plus by plus c equal to 0. That will be, I don't go to formula because unnecessary, again that will take time. So I simply write, put x1 for x and y1 for y. Look here, ax plus by, nahi, ax1 plus by, nahi, by1 plus c upon under root, ये बस इतना करना है. दैट इज द डिस्टेंस p. अब प्लस में आएगा माइनस में आएगा, डिस्टेंस तो हमेशा ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आपके घर के डिस्टेंस यहाँ स्कूल से वो -5 किलोमीटर है तो भी आप 5 किलोमीटर कहेंगे, इस तरफ है तो भी आप कहेंगे नॉट -3 बट 3 किलोमीटर. तो दैट वे टू मेक इट मॉड वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू, ax1 plus by1 plus c upon under a square plus b square. And then we can go to the questions. हाँ, तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन मैं समझता हूँ और कोई चीज़ बची रह गई. आपके कोऑर्डिनेट आएंगे, अगर मान लीजिए इसमें आएगा तो क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि करीब करीब अपनी बात को हम पूरा करेंगे, फिर आगे देखूंगा. अभी यस सर, स्टार्ट. तुम बूढ़े हो गए, बदलनी होगी मुझको यौवन की परिभाषा, बिना चश्मा के नहीं चल सकते. इट्स ग्रेस ऑफ गॉड दैट आई एम स्टैंडिंग लॉन्गर, अदरवाइज to my age it is very difficult, normally to the people. Now my dear children, let me show you, and the same what I have written here, again here it is printed, और इसलिए ये सब आपके पास जाएगा. वो तो बोर्ड वाला भी रहेगा और ये भी रहेगा. तो देखिए, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस y इक्वल टू, जैसा मैंने बताया था, इन्होंने डायरेक्ट इसमें फार्मूला दे दिया गया है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. द वे आई टोल्ड यू, अगर ये टू लाइंस पैरेलल हैं तो इन्होंने आगे बताया, और उसके बाद से हाँ देखिए 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन, ये थीटा 0 होगा जब पैरेलल होगा तो m1 इक्वल टू m2. अगर केस 2 है, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन थीटा इक्वल टू 90. उस फार्मूले में अगर थीटा 90 होगा तो क्या होगा, tan 90 इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ये, लेकिन डिनोमिनेटर 0 होगा, देखो यहाँ डिनोमिनेटर, सो m1 m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी m1 m2 इक्वल टू -1. कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं. फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो आप करेंगे वैसे ही. m1 एक, इसका m1 क्या होगा, यस -√3, और इसका m क्या होगा, स्लोप +√3. यानी क्या मैंने बताया था, कोफिशिएंट ऑफ x, m डायरेक्ट निकालना है, डोंट गो फॉर फर्दर ऑपरेशंस. कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ चेंज्ड साइन, और उसके बाद यहाँ हो रहा होगा, ये लंबा चौड़ा काम अननेसेसरी करते हैं लोग, और उसके बाद स्लोप ऑफ द लाइन देखिए सब वही करते होंगे, ये वैल्यू रखते होंगे, ऐसा करते होंगे, और tan थीटा इक्वल टू √3. और अगर मान लो tan थीटा इक्वल टू -√3 भी होता ना, देन आल्सो आपको जो एंगल मॉड वैल्यू कहा है उसमें √3 ही लिखते, अन थीटा इक्वल टू. समटाइम्स it becomes, is लिखा है wrong, it becomes difficult to find the angle between two lines by using the angle formula. It will be clear for the following lines. Yes.
वेट वेट वेट, अब इसको बताया नहीं मैं। हाँ, ये फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, किच वन, x इक्वल टू 2 एंड x प्लस रूट 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। आई शैल कम टू द बोर्ड माई डियर, आई शैल कम टू द बोर्ड, थोड़ा सा कि मैं बताऊं कैसे कैसे, क्योंकि कभी कभी आई टेल यू मेनी टाइम्स आई हैव while I'm sitting in interview, I have been asking the questions with the teachers. I found they find difficult to give me the answer. So I will just tell you one point, और उससे आप लोग बता देंगे, या हम आप ही को बता देंगे, आप ही को बता दें डायरेक्ट यहीं से। अगर मान लो कि एक लाइन है y इक्वल टू रूट 3x, इसमें लिखा नहीं हूं, मैं बोर्ड पर भी जाने में थोड़ा आलस लग रहा है। y इक्वल टू रूट 3x, वट इज हियर थीटा, m क्या यहां है, y इक्वल टू रूट 3x, y इक्वल टू mx, m क्या है यहां रूट 3, तो थीटा क्या होगा 60 डिग्री। और एक है मान लो y इक्वल टू x प्लस 5, इसमें m क्या है 1, यानी थीटा है क्या यहां पर 45। कह रहा है मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल बताइए, तो एक 60 एक 45 है, देयरफॉर 15 डिग्री। तो यहां पर ये कह रहे हैं, ये जरा से देखना एक क्वेश्चन तो जरा क्लियर होगा। एक लाइन है x प्लस रूट 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन ऊपर थे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस बाय, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x इक्वल टू 2 मीन्स, x इक्वल टू 2 मीन्स बहुत पहले दिन बताया था, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट डिस्टेंस a दैट इज x इक्वल टू a। इसने x इक्वल टू 2 लिखा, इसलिए क्लियरली इन्होंने x इक्वल टू 2 लिख दिया, पैरेलल टू y एक्सिस। और जो दूसरी लाइन है यहां पर, यहां दूसरी लाइन है, उसका m क्या था -1 बाई रूट 3, यानी 150 या -1030, दैट मीन्स 150 डिग्री थीटा। अब कह रहा है इनके बीच का एंगल बताइए भाई, तो क्लियर है कि यहां पर ये जो एंगल है, ये जो चाहिए था इनको इससे और यहां पर, तो वो अल्फा है, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 90 प्लस थीटा, या थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस 90। थीटा इज व्हाट 150 डिग्री, तो 150 माइनस 90 इक्वल टू 60। फॉर्मूला नहीं लगाया, अरे एक का है 90 और एक का है 150, तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 150 माइनस 90। एक लाइन है 60 डिग्री बना रही है, दूसरी लाइन है 30 डिग्री बना रही है, तो दोनों के बीच का एंगल यस 30 डिग्री। वन लाइन इज मेकिंग angle 90, the other line is making angle 60 degree. What would be the angle between them is 90 minus 60, 30 degree. तो यहां पर फार्मूला लगाने में तो हम निश्चित है, अभी हम दिखलाएंगे। If I use the formula, most of you shall be in trouble. That I can do, but for you it is. So जब कभी भी x इक्वल टू 2 रहे, या डायरेक्ट आपको लग रहा हो कि आप तो इस लाइन का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव है, आईआईटी में ऑब्जेक्टिव आ गया, फाइंड द एंगल बिटवीन x इक्वल टू 2 एंड y x प्लस रूट 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आप उसको एक m इन्फिनिटी रखेंगे, नीचे 0 आएगा। अब tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस m2, अरे परेशान हो जाओगे यार, उसका मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन बिफोर दैट if one angle is 90 degree, one angle is 150 degree, then 90 minus 150 बोलो, 150 minus 90 बोलो, हमेशा तो हमें एंगल पॉजिटिव में चाहिए, सो 60 डिग्री। हाँ, यहाँ क्या है, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द स्ट्रेट लाइन्स, हाँ स्ट्रेट लाइन क्या है, हाँ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 7x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0।
तो जो पहली लाइन है वो तो उटपटांग है, दिस लाइन प्लस लैम्डा इक्वल टू दिस लाइन इक्वल टू 0, तो उसको जरा इकट्ठा कर लो, कष्ट रख लो, तो इन्होंने कर लिया है, देखो ये कर लिया। और दूसरी लाइन हियर, तो पहले वाले का स्लोप होगा, वो अपने दिमाग को नहीं बड़ा बनाना, बाप रे इतनी बड़ी लाइन का हम कैसे निकालेंगे। अरे हमारे बच्चे अगर पहाड़ लिखा हो तो भी करेंगे, कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई with changed sign, coefficient of x, coefficient of y with changed sign, and slope of this line, जो दूसरी लाइन है जिस पर परपेंडिकुलर, उसका क्या होगा, 5/7 की 7/5 क्या होगा, 5/7 और 7/5, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है भाई 7/5, तो लिखूं 7/5, नो, व्हाट इज रॉन्ग हियर, I will change the sign also. Here it is plus, so I shall write, कहीं लिखा होगा -7/5, लेकिन दोनों तो लाइंस परपेंडिकुलर है ना, so have the product equal to -1, इन्होंने लिखा होगा, किया होगा, और इस तरह से k की वैल्यू आ गई होगी। यहाँ पर r दिख रहा है, नो भाई ये तो k होगा, कहाँ से r आ गया, वो सब प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा बेटा। चलिए, तो k इक्वल टू दिस वन। एक और एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इससे मुझे बड़ा बचत हो रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू द प्रिंटेड फॉर्म। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, हो इसको क्या करेंगे, फाइंड द पॉइंट पासिंग थ्रू 2, 3, तो एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन 4x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो दो मेथड, एक मेथड मैं छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा हल्का सा लेंदी होगा, आपको मैंने बताया है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट y minus y1 equal to mx minus x1, I don't know how it has been done here, y minus y1 equal to mx minus x1, yes, and इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये लाइन, तो इसने आगे क्या किया है, जैसा मैंने ही जैसा किया वैसे ही बताया। हाँ देखो, तो 3x प्लस 4y, 4x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखना था, प्रिंटिंग में फॉल्ट है, इक्वल टू 0 इज गिवन बाय हियर, यस हियर इट इज। तो कह रहा है इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, मैंने वहां पर बताया था, पता नहीं आप जल्दी भूल गए, आप वहां पर देखेंगे नोट में जो बोर्ड पर लिखा था, क्या करो, एक्स वाई के कोफिशिएंट बदलो, m अलग है, मैं कह रहा हूं कोई भी लाइन जो किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, उस जिस लाइन के परपेंडिकुलर होगा उसके एक्स वाई के कोफिशिएंट बदलो, इसने भी बदल दिया, एक्स के पीछे 3 डाल दिया और वाई के पीछे 4, और साइन भी चेंज किया, माइनस के जगह पर प्लस किया, तो 3x प्लस 4y मैं जनरली पसंद करता हूं इक्वल टू लैम्डा कर दूं, ताकि लैम्डा डायरेक्ट आ जाए बस। लेकिन यह तो यही हमें चाहिए ना, यही हमें चाहिए ना, यही आंसर हमारा यही है, लेकिन लैम्डा अननोन है, तो उसके लिए कह रहा है बट इट पासेस थ्रू दैट इज 2, 3, अरे सब्स्टिट्यूट कर दिया, लैम्डा आ गया, आंसर आ गया। मैं थोड़ा सा बोर्ड पर आऊंगा और उसके बाद से, तो अभी सर जस्ट मेक इट ऑफ, let me see here. How simple ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल है ना। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं दे दूं फिर से, कोई भी लाइन, चलो केवल मैं दिखलाऊंगा ना, नॉट आई शैल डू मच इन डिटेल्स। 3x plus 4y equal to 6. What is the perpendicular line? What is the perpendicular line?
लाइन, ओके, कन्वो ऐसे चेंज करो, x का कोफिशिएंट y को दे दो, y का कोफिशिएंट x को दे दो, एंड देन 4x 3y, और यहां किनारे सब कचरा हटा करके इक्वल टू लैम्डा कर दो। लेकिन यहां प्लस है, अरे भाई लिख रहा है माइनस। चलो सेकेंड एग्जांपल लो, bx प्लस cy इक्वल टू लैम्डा, इसका परपेंडिकुलर लाइन bx प्लस cy इक्वल टू, चलो दूसरा कांस्टेंट कर दूं, bx प्लस cy इक्वल टू d। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? यस यस, c इधर b इधर, उसको फेंको तो cx माइनस by इक्वल टू लैम्डा। और देखो एक जरा बहुत झंझट वाला कर दूं, x सेक थीटा प्लस y कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अरे दुनिया भर का लिखो तुम। इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा? ले आओ कोसेक को इधर, x कॉसेक थीटा, और यहां पर y सेक थीटा, लेकिन यहां प्लस है, सो माइनस इक्वल टू दुनिया भर का पहाड़। I shall leave and I shall write lambda. So don't worry that what is very much given in right hand side. चेंज किया, प्लस था इसलिए माइनस किया, इक्वल टू लैम्डा। तो इसलिए, और फिर वो उसके बाद लैम्डा निकालने के लिए वो जरूर कुछ कहेगा, तो लैम्डा कहेगा पासिंग टू दिस पॉइंट, पासिंग टू दैट पॉइंट, देस। अरे सब्स्टिट्यूट करो एक्स वाई की जगह पर, लैम्डा आएगा, लैम्डा कहेगा बेचारा हमको कि हमको दे दो हमारी वैल्यू, तो आप सब्स्टिट्यूट करके उसको दे देंगे, ले बेटा तू भी खुश रहा। अब मैं बताने जा रहा हूं बेटा, point of intersection of the two lines. मैं ज्यादा झंझट आपको समझाने के लिए नहीं कर रहा हूं। जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, सॉल्व the given two, सर गलती करते हैं, जरा सा मैं उसको क्या गलती करते हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। एक लाइन दिया, मान लीजिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, वन लाइन इज 3x माइनस 4y plus 6 equal to 0 and 6x minus 8y and plus 18 equal to 0। मान लो इसको कह रहा है find the distance between two lines। हमेशा distance between two lines will be parallel lines। अगर नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उसका जीरो होगा। इसलिए आपको दिया ही है पैरेलल, तो आप हमारे बच्चे कर रहे हैं कि इनमें ओरल है, 0 0 कर देंगे, तो P1 इज 6 बाई क्या है 6 बाई 5, 0 0 से डिस्टेंस 0 0 6 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P2 इज 18 अपॉन अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 636 64, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी दैट इज 10। यही गलती हमारी। क्या करेंगे हम, पहले इसको पैरेलल बना ही देंगे उसके,
है पैरेलल, कर लूंगा तो उससे भी, लेकिन जरा आंख बंद करके नहीं, इसको कह देंगे दिस कैन बी रिटन एज 3x माइनस 4y एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए ये कितना अच्छा लगेगा, करते उसमें भी लेकिन कहीं गलती होती है, तो हम क्या कहेंगे कि P2 is 9/5। then what is the distance between the two? 6/5 minus 9/5 or 9/5 minus 6/5, and the distance that is equal to, चलिए 6/5 minus 9/5 that is -3/5, लेकिन हमें तो डिस्टेंस प्लस चाहिए, सो 3/5। इस तरह से हम करेंगे द डिस्टेंस। हम आपको ओरल पूछें कैसे होगा, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 and x plus y equal to 6 equal to 0 equal to 6, what is the distance between the two parallel lines? You will say, sir, this is minus 6 equal to 0 and therefore 6 minus 6 upon under root 2, साफ तुरंत। अरे कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हम किससे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस between y equal to mx plus c and y equal to mx plus d। देखें तो हमारे बच्चे समझ रहे हैं नहीं, what is the distance, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा हम देखें कि हमारे बच्चे अलर्ट हैं कि नहीं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन y equal to mx plus c and y equal to mx plus d, डिस्टेंस बिटवीन। कहेंगे सर क्यों आप बार बार इसमें टाइम ले रहे हैं, ये तो एक लाइन है, बढ़िया सा अगर बनाना चाहते हैं mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड mx माइनस वाई प्लस डी इक्वल टू 0, तो क्या होगा डिस्टेंस, एक c अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, एक d अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, सो डिस्टेंस that is c minus d upon under root m square plus 1। कितना सिंपल, बस ये ध्यान रहे कि ये है। तो एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा क्वेश्चन एक अच्छे बच्चे से पूछ दिया गया कि इसमें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड k टाइम्स ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, वो बेचारा झट से बोल दिया कि उसके सर ने समझाया था c अब माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा वो अभी पैरेलल के उस शक्ल में नहीं आया, तो क्या करोगे आप, ax प्लस बी वाई प्लस डी अपॉन के इक्वल टू 0, ये होगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2। तो थोड़ा सा होशियारी बदल लो, प्यारा सा उन दोनों की शक्ल बना लो, ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई, बढ़िया सा ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, तब c माइनस डी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये डिस्टेंस ओरल, यस यस यस, ओरल डिस्टेंस क्या होगा इसमें और इसमें, दैट इज c माइनस डी अपॉन के अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होगा। आप लोग को भी हम मैथमेटिक्स पढ़ा दे रहे हैं, काश आप लोग 10th के बाद आए होते, मिले होते, तो हम ये, आइए साहब, क्या, हाँ, एक मिनट, हाँ, जरा से जहाँ ख़त्म किए थे वहाँ तक लाइए, तो हाँ लाइए, ऊपर लाइए शायद, हाँ, और ऊपर लाइए ना, वो आप याद रखा करिए। हाँ चलिए, यस, खैर ये सब ऐसे था, हाँ, यस, मोर, एक मिनट देखो, हाँ, चलिए और ऊपर,
और ऊपर सॉल्व एग्जाम्पल्स, आऊंगा सब में। कह रहा है इफ P be the measure of the perpendicular segment from the origin on the line whose intercept on the axis are A and B। और ये क्या बहुत बड़ा बता दिया, दुनिया भर का नखड़ा दे दिया हमारे बच्चों के लिए। कह दिया कि A है और ये, अरे साफ क्यों नहीं कहते कि इफ P the length of perpendicular from origin to the line x upon a plus y upon b equal to 1। ये मैं करा भी चुका हूं पहले दूसरे ढंग से। तो 0 0 से अब देखिए कैसे कर रहा है सोल्यूशन, x upon a plus y upon b equal to 1 है। थोड़ा सा स्टिक, सॉरी आई शुड नॉट हैव टेकन स्टिक। ठीक है, अब ये इतना देगा तो कह रहा है x, वो जब कह रहा है x इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b, इट मीन्स द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस वन, और bx प्लस ay माइनस a b इक्वल टू 0। मैं तो दूसरे ढंग से करता लेकिन ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन इज ठीक ही है, ओरिजिन इज तो x की जगह पर 0, y की जगह पर 0, ये ज्यों का त्यों अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द, एंड दैट इज p इक्वल टू ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया, यही जो चाहता है वो होगा। थोड़ा इसमें और थोड़ा कष्ट हमारे बच्चे करेंगे, या ये इसमें डिस्प्ले में होगा। ये क्या करेंगे कि उलट भी सकते हैं, 1 अपॉन पी इक्वल टू अंडर रूट दिस स्क्वायर, और तब उसके बाद देखिए यही किए होंगे शायद। हाँ, पी स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, या अलग अलग डिवाइड कर दिया, हो गया सिंपल। नेक्स्ट, a straight line passing through the point this one and distance from the origin is 1 unit, find this equation। कौन सी बड़ी बात है, a straight line passing, हमारे बच्चे बार बार जानते हैं, सर ने बता दिया है कि अगर 1 पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इन्होंने भी कर दिया कि देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 to y माइनस टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन यानी एक्स प्लस वन, थोड़ा बढ़िया बना दिया। और कह रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अब दिया हुआ है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम -1 to, ये भी देंगे, फ्रॉम -1 to इज गिवन 1 है। तो ओरिजिन से इन्होंने 0 0 भर करके ये फॉर्मूला लगा दिया, ये बिल्कुल सिंपल। और तब उसके बाद m इक्वल टू आ गया, इसमें इक्वेशन में भर दिया और ये आंसर आ गया। यानी उन्होंने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट पासिंग थ्रू दिस, पासिंग थ्रू है ना, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस वन। रुको, पैरेलल टू दिस वन, जो कहा मैंने पैरेलल, वो तुरंत वो बच्चे समझ गए और वो कह रहे हैं सर आप तो जरूर जाएंगे, पैरेलल इसके कह रहे हैं ना, तो कह रहे हैं आप ऐसे ही लिखेंगे आगे 5x, पैरेलल है इसलिए एक्स वाई में तो कोई बदलेंगे नहीं। अगर परपेंडिकुलर होता तो क्या करते हैं, ये 12 यहां आता, 5 वहां जाता, लेकिन यहां पर पैरेलल है तो कहूंगा इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन इज 5x माइनस 12y इक्वल टू लैम्डा या प्लस लैम्डा, जैसा भी करेंगे। देखें क्या ये कर रहे हैं, एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज 5x माइनस 12y, ये प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द गिवन पॉइंट द डिस्टेंस इज गिवन +-4। उन्होंने क्या, कैसे ये कैसे करते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वहां से है कि ये देखिए यहां से 0 0 से है तो 5 × 0 माइनस 12 × 0 प्लस 26 अपॉन अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी 13। और ये साहब आ गया, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा को दे दिया, कहे खुश रहिए आप भी। चलिए उनका इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट, क्या कह रहा है, फॉर अबव क्वेश्चन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैन आल्सो बी ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन 3 5
एंड -3 2 लाई ऑन द सेम साइड। अच्छा, एक क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, शो दैट द पॉइंट्स ये और ये ऑन द सेम साइड है। बच्चों, मैं बोर्ड पर मुझे जाना था और बताना था, लेकिन हम यहीं से बता रहे हैं, कभी भी कोई भी पॉइंट को अगर सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो, उसके लिए यही करना है कि जो भी पॉइंट दे, जितने भी पॉइंट्स दें, आप उन पॉइंट्स को उस लाइन जो दिए हुए हैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जो वैल्यू आवे, अगर सेम वैल्यू से नहीं मेरा मतलब है, साइन से मतलब है। अगर प्लस आता है तो सेम साइड में, अगर अपोजिट प्लस मतलब दोनों माइनस आता है तो भी सेम साइड, दोनों प्लस आता है तो भी सेम साइड, और एक प्लस और एक माइनस तो अपोजिट साइड। जरा देखें हम लोग क्या कर रहे हैं ये भी। हाँ, नेक्स्ट देखो, गिवन लाइन दिस वन एट 3 5, ये देखिए -34 at -3 -2, yes, here -3, ये दोनों निगेटिव है, सो सेम साइड में होगा। कह रहा है सेम साइड में, यानी सेम साइड में। और अगर मान लो एक -34 आता, एक +3 आता, मतलब अपोजिट साइड में, तो हम क्या करेंगे, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द पोजीशन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन, आप वो पॉइंट्स उसमें रख देना। अगर सेम साइन हो, आई एम नॉट कंसर्न विथ माइनस और प्लस, सेम साइन, नहीं माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो सेम साइन, और एक प्लस हो एक माइनस हो, या पहला वाला माइनस हो दूसरा वाला प्लस हो, तो अपोजिट साइन। बस ये हो गया। और वो परपेंडिकुलर, हाँ, यहाँ पर क्या रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन ये भी दिख रहा है, P and P' be the perpendiculars from the origin upon the straight line x sec theta plus y cosec theta equal to a. Prove that. A very very good question this one. 4p square plus p dash square equal to a square. मैं समझता हूँ यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अब अच्छा क्वेश्चन है और मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूंगा तो अच्छी बात नहीं है। तो सो दिस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 आई शैल स्टार्ट 144 दैट आई विल कम, और उसके बाद से दैट्स ऑल राइट। ओके, थैंक यू माय सन, थैंक यू डियर सर्स। ओके, लीनियर इक्वेशंस, क्यों लीनियर बोल रहा हूं, कोई बात नहीं थी, मेरी होशियारी नहीं कुछ, वो लीनियर होगा ही, मैं आपको बता रहा हूं। लीनियर इक्वेशंस वैसे ना, किसी भी कर्व का, किसी भी लाइन से दो कर्व्स का कोई भी हो, उनको सॉल्व करने का तरीका यही है, लेकिन हमारे पास इतना तो दिया नहीं रहेगा। उनको ले लेंगे, फाइंड x and y, then xy will be the point of intersection। जो x और y की वैल्यू निकलेगी वही है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कभी कभी क्या करते हैं बच्चा कि वो कहते हैं 3 लाइंस दे देंगे, कहेंगे प्रूव दैट द 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, यानी तीनों लाइंस, उनके 3 इक्वेशंस होंगे, लीनियर इक्वेशंस, वो कहेंगे प्रूव दैट द 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। हमारे बच्चे कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात आप कर रहे हैं, 2 लाइंस को सॉल्व कर देंगे। कॉन्करेंसी, इधर और इधर 2 लाइंस हुई, अभी 3 लाइंस देगा वो कॉन्करेंसी के लिए, तो वो 2 लाइंस मैंने डाल दिया, और 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने बताया सीधा सीधा क्लास 8 मेथड, क्लास 7 मेथड, जहां भी पढ़ाए हो आपको, और उससे ये पॉइंट हम निकाल लेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, नहीं वो कह रहा है ये मैं नहीं चाह रहा हूं, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रूव दैट द फर्स्ट लाइन, the second line and third line are concurrent, means passing through the same point। तो कहेंगे भाई ये तो सिंपल सी बात है, हमने 1 और 2 से सॉल्व किया, एक्स वाई निकाला, एक्स वाई को थर्ड में डालो कि भैया तुम खुश रहो।
जब थर्ड लाइन खुश हो जाएगी मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगी तो कहेंगे लीजिए, तब तो ऑल द थ्री लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। कभी कभी उसी में मस्ती कर देंगे, दो लाइंस तो साफ सुथरा देंगे और तीसरी लाइन में कहीं के घुसेड़ देंगे, कहीं लैम्डा डाल देंगे, कुछ भी कहेंगे और कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अरे आप कुछ भी करो, दो लाइंस हमको प्यारी प्यारी दे दो, उससे मैं एक्स वाई निकाल दूंगा, थर्ड लाइन में सब्स्टिट्यूट करूंगा और थर्ड लाइन सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपकी मर्जी थोड़ा ही है। आप क्वेश्चन ही कह रहा है कि द थ्री लाइंस इफ पास थ्रू द सेम पॉइंट, तो सेम पॉइंट से होगा तो वो एक्स वाई को सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो आप क्या कर देंगे उसमें, तो लैम्डा खुद से उगल देगा वो कि भैया मैं हूं यही वैल्यू जिसके कारण कि ये आपको दिख नहीं रहा है, तो कहेंगे लो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो इस तरह से हम लोग ये कर लेंगे उनसे कॉन्करेंसी ऑफ द लाइंस। तो थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चंस ले लें और उसके बाद से फिर आएंगे हम बोर्ड पर। और अब लुक हियर नाइसली इट इज गिवन कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। ये कह रहा है सॉल्विंग एनी ऑफ द टू इक्वेशंस एज आई टोल्ड यू in order to get the value of x and y, put these values of x and y in third equation. If it satisfies, then the three lines are said to be concurrent. जो वहाँ बताया यहाँ पर साफ लिखा हुआ है. Now next, find the coordinates of the foot of the perpendicular from the point 2, 3 on the straight line. ये है. आऊँगा आगे. हाँ, नेक्स्ट अभी जस्ट आई वहाँ पर जाऊँगा और अभी आपको बता दूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 38 इन द लाइन. ठीक है, ये भी कर लेंगे हम लोग. चलिए नेक्स्ट. हाँ, तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को पहले मैं बता दूं तो आप आ जाएंगे थोड़ा सा थोड़ी देर में, है ना. यस, बैक द टू एग्जांपल्स जहाँ पर कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर. हाँ, ये हाँ यहीं से फाइंड, यहीं से. तो यहाँ से तो इसको थोड़ा सा मैं बोर्ड पर समझा दूँ. यहाँ समझा नहीं पाऊँगा बेटा ना. इट लुक्स दैट इट इज़ रिटेन एंड इट मेट बी वाइट. नहीं, दिस इज सिंपल वाइट वॉल. सिंस प्रोजेक्टर इज गिविंग, दैट्स व्हाई इट इज लुक. अदरवाइज अगर ऐसा होता ना तो आई कुड हैव मेड यू अंडरस्टैंड हियर ओनली. एनीवे, दोनों क्वेश्चंस को देख लूँ क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नॉर्मली आता है. हाँ, अब आइए. इट हैज़ बीन वेरी गुड ऑफ स्विचिंग ऑफ. यही है एक्सपीरियंसेस. नाउ मैं क्यों समझाऊंगा. आई विल नॉट गिव यू द क्वेश्चन एंड नॉट आई विल सॉल्व इट. लुक हियर इज ए पॉइंट P and say here it is somewhat the coordinates x1, y1, and it wanted the foot of perpendicular here. ये कह रहा है तो क्या करेगा बच्चा. P का कोऑर्डिनेट्स दे दिया और कह रहा है कि AB पर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए. मतलब फुट मतलब पैर. परपेंडिकुलर का जहां पांव पड़ रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स निकालिए. तो फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर मान लो कि ये x1 y1 नहीं, मान लो ये 3, 4 है और ये यहां पर मान लो 4x - 3y + 5 = 0 है. मैं करूंगा नहीं, वो तो वहां पर किया हुआ है. आई शैल गिव यू दैट एग्जाम्पल. बट बिफोर दैट वो कह रहा है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3, 4 टू द लाइन. तो कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर तो आप निकाल सकते हैं ना. निकालूंगा ही. मैं अपने बच्चों को कह दूंगा व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ PQ. व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ PQ.
परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अरे हमारे बच्चे बादशाह हैं, कहेंगे सर क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। अरे इस पर परपेंडिकुलर चाहिए, आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई उसको चेंज कर दीजिए, यानी 3x प्लस 4y 3 इक्वल टू लैम्डा, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, बट दिस परपेंडिकुलर लैम्डा तो हमारे बीच में आड़े आ गया ना, परेशान कर रहा है। तो हाउ टू फाइंड लैम्डा? यस, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन विथ 3 4। तो आप कहेंगे इट सिंस इट पासेस थ्रू 3 4, सो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू, अरे भाई उसको मुझे बहुत ज़्यादा करना नहीं था इसलिए मैंने बता दिया, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, लैम्डा इक्वल टू 25। देयरफॉर वन इक्वेशन इज 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड द अदर इक्वेशन इज 3x, अभी जो आपने पाया 4y इक्वल टू 25। अब क्या इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते? कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं? दोनों को सॉल्व करके। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, वही क्लास 8 मेथड। ऐसा 4 से इधर मल्टीप्लाई किया, 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, एक एलिमिनेट किया, वो जो क्लास 8 7 में कहीं करते हैं। तो देयरफॉर वी शैल फाइंड एक्स वाई, और वही होगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अरे बच्चों एक और तंग करेगा, वो कहेगा कि आप इस लाइन में, यानी वो लाइन ये 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही नहीं, इसका इमेज बताइए। लीजिए साहब, ये P है तो कह रहा है वो Q का कोऑर्डिनेट बताइए। Q का कोऑर्डिनेट बताइए, इमेज पॉइंट का, इसका जो इमेज बनता है तो हम कहेंगे ये तो प्लेन मिरर टाइप है, तभी ना इमेज बनेगा, और इक्वल डिस्टेंस पर बनेगा। छोटे क्लासेस में 9th 10th में ये फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि the image is formed at the same distance but on opposite side. Look here, then here, Q पता। कहने का मतलब ये है, ये कोई बात नहीं, एक बार हम इस कोऑर्डिनेट को पता लगा लें तो हमें एक्स वाई मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? कि ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, और Q अननोन है तो कहेंगे कि ये अगर एक्स वाई चाहिए आपको तो x प्लस 3/2, x प्लस, ये इमेज हमें चाहिए, लेकिन इमेज का हमने मान लिया कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, तो x प्लस 3/2 इक्वल टू x1। x1 आपने निकाला है, हमने नहीं निकाला, लेकिन आप समझिए निकालेंगे। सिमिलरली y प्लस 4/2 इक्वल टू y1, सो xy आएगा ना, दैट इज द इमेज पॉइंट, दैट इज द इमेज पॉइंट। तो जब कहेगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो उसको, तो अगर मान लो इमेज पूछ रहा है तो मतलब ये तो करना ही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसके बाद 2 लाइन और है उसको इमेज निकालने के लिए। तो लेट मी कम विद दैट एग्जांपल्स। आई नो दैट इट इज गिवन देयर। हाँ, क्वेश्चन देखें। हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the foot of the perpendicular from the point 2 3 ऊपर वाला पॉइंट, वैसे जैसे 3 4 मैंने कहा, इसने 2 3 लिखा है, on the straight line। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन 4x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होना है 5x, 4 को उसको दे देंगे 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, लेकिन यहां पर इसको, यहां पर क्या है माइनस, तो हमारा क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर, तो लिखो 5x, देखना
5x 4 उसको दिया, माइनस है तो प्लस, इक्वल टू लैम्डा। इधर रखें उधर रखें कोई एक ही बात है। बट इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट दैट इज 2 माइनस 2 3, तो 2 3 से सेटिस्फाई कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाए, तो उसके बाद यहां पर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, राइट, लैम्डा की वैल्यू, यानी ये इक्वेशन आ जाएगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा। तो ये आया और ये पहले से दिया हुआ है, सो ये पॉइंट जो m है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, दैट कैन बी फाउंड बाय, अरे ये लाइन हमको मिल गया, ये लाइन हमको मिल गया, और दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेकिन आल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। इंटरसेक्शन के लिए हमारे बच्चे तो बिल्कुल मस्त हैं, वो कह देंगे, उनका भाई जो है वो 7th में है, कह देंगे तू यार सॉल्व कर, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं। तो सो बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस, और ये दोनों, वो ऊपर वाला और इसके बाद, तो उसको करेंगे, एंड वी शैल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x y। लुक हियर, x इज हो बिग वैल्यू, क्या करेंगे, हमारे वश में तो है नहीं। x is 78/41, 128/41, and therefore the coordinates of this one, foot of the perpendicular, it is foot of the perpendicular। अब यहां पर देखो कह रहा है, हाँ, find the image of the point 38 in the line, यानी ये मिरर कह रहा है, in the mirror in the line x plus 3y minus 7 equal to 0। क्या करेंगे उसको पहले हम इसको और 38 इन द मिरर, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर निकालना है बेटा, तो क्या करेंगे, 3x 1 है, इसको देंगे उसको, तो 3x प्लस y, नहीं प्लस है तो माइनस, तो 3x वो लिखा होगा आगे, यस सर, हाँ, तो ये देखो 3x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लेकिन लैम्डा हमें पता लगाना है, एंड इट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट, पास कराया, लैम्डा आया, लैम्डा इक्वल टू -1, एंड देयरफॉर 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर का ये इक्वेशन, और एक इक्वेशन बेस का उसने दिया हुआ है, इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी कंजूसी ही कर रहा है, सॉल्व नहीं कर रहा है, मेरे जैसा ही कंजूस है ये भी, इसने सॉल्व करके बता दिया कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 आएगा, एंड देयरफॉर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 1 2। हियर इट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, हियर इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो जिससे ड्रॉप किया गया वो पॉइंट दिया हुआ है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये है, और इमेज उसके दूसरी ओर ये मिलेगा, इन्होंने अल्फा बीटा मान लिया है, तो अल्फा बीटा और जो पॉइंट जिसे डाले हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा 1 2, सो 1 इक्वल टू अल्फा प्लस दिस अपॉन 2, 2 इक्वल टू बीटा प्लस दैट अपॉन 2, इसमें आपको निकल आएगा अल्फा और बीटा, सब ये आ गया, एंड हेंस ये है, अच्छा क्वेश्चन आ गया, हेंस द इमेज पॉइंट इज, जो अल्फा बीटा आया, जो उन्होंने माना, हम एक्स वाई मानते, हम एच के मानते, कुछ भी मानते, दिस इज द इमेज पॉइंट। चलिए एक और क्वेश्चन का देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग लाइंस एंड दिस, अरे ये पर हम बच्चों को क्यों टाइम खर्च करेंगे, कह रहा है कि ये बताओ ये और कॉन्करेंट, आप कहेंगे, आप ही कह देंगे सर छोड़िए इसको, इसमें कोई मज़ा नहीं है। क्या मज़ा नहीं है, मज़ा तो है, क्वेश्चन आएगा तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन क्या करेंगे आप, इनको और इनको सॉल्व करेंगे, x और y आएगा, x y को इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और खुश करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और कह देंगे लीजिए साहब आपकी थर्ड लाइन सेटिस्फाई हुई, खुश हुई, इसलिए ऑल द 3 लाइंस और कॉन्करेंट। ये नीचे किया हुआ है, देखिए, इनको सॉल्व किए, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 4 आया, -4 आया, पुटिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन थर्ड वन, और ये खुश करा रहे हैं, ये देखो, और कह रहे हैं कि RHS के बराबर आ गया, हेंस द गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट। हाउ सिंपल ना,
फिर से एक बार मैं इसको बता दूं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे कि जिस लाइन पर परपेंडिकुलर है उस लाइन के एक्स वाई के कोफिशिएंट बदल करके और उसको लैम्डा लिख करके उसको सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करने के बाद एक्स वाई आएगा, दैट विल बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इमेज के लिए वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिड पॉइंट हो जाएगा और एक नया पॉइंट आपको चाहिए इमेज का, लेट इट बी एच के, लेट इट बी अल्फा बीटा, लेट इट बी x1 y1, और उसके बाद से उसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल देंगे एंड दैट विल बी द इमेज पॉइंट। नेक्स्ट, ठीक है, वो आ गया, इनका काम हो गया। चलिए ऐसे ही वो कह रहे हैं फॉर व्हाट, जैसा मैंने समझाया, जरा से 1 मिनट से नीचे उतारिएगा वो क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस ऐसे, गिवन द लाइंस आर कॉन्करेंट, और थोड़ा सा हाँ ये अब वो दुनिया भर का है कि 3 लाइंस में कहीं के फिट कर दिया अननोन, तो उसको सॉल्व करेंगे, थर्ड में डालेंगे। जो बढ़िया बढ़िया लाइंस होगी जिसमें कि के और वैसा नहीं होगा उनको सॉल्व करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू उस अच्छा वाली लाइन में नहीं डालेंगे जिसमें के है, उसमें रख देंगे, के उगल देगा, भैया मैं हूं ये, मेरी ये वैल्यू है, और वही सब आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो, उसके बाद एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, वो घर पर आप लोग करेंगे। एंड हियर एक्सरसाइज 2, 3, जरा सा मैं देख लूँ कोई क्वेश्चन है क्या। परपेंडिकुलर टू द लाइन, नहीं, ठीक है, सब ऐसे ही सिंपल है। और कॉन्करेंट कम ही दिया हूँ मैं। थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइंस आर कॉन्करेंट, वही बात है कि ये कह रहा है कि ये इफ द लाइंस ये तो देखो, इसी को मैं कह रहा हूँ खराब वाली लाइन। क्यों? क्योंकि के अननोन है। प्यारी प्यारी लाइन क्या है, ये और ये, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई जो निकालेंगे वो इनको कहेंगे ले, तो इसको डाल देंगे, तो के कहेगा बस 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 हो गया, मेरी इसी वैल्यू के कारण मैं के पड़ा हुआ था, आप दे दिए तो खुश हूं मैं, तो के कहेंगे कि वही वैल्यू है। एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस दिस फॉर्म रॉम्बस। अच्छा क्वेश्चन है, घर पर करिएगा, अदरवाइज आई विल डू इट। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट a cos क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा एंड परपेंडिकुलर, इसको जरूर मैं करूँगा। ये यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ तो दिया हुआ, इन्हें सॉल्व नहीं किया हुआ, मैं चाहता हूँ इसको सॉल्व करूँ। थोड़ा सा मेरा मेथड हो सकता है ईजियर पड़े, है, इसलिए हम उसको करेंगे। तो लेट मी डू इट, है, इसको यहाँ पर कर लेंगे हम। ये क्वेश्चन करूँगा, लेकिन एक मैं जब तक लिखूँ एक्स सेक थीटा आप रखेंगे, उसके बाद अभी मिटाएंगे नहीं इसको, बस केवल क्वेश्चन लिख दूँ, बात ही। हाँ ठीक है, अभी इसको ज़रा डिस्प्ले करेंगे, तो मैं अभी डिस्प्ले कर दिए थोड़ी देर के लिए। कर रहा है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट a cos क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन टू विच पास, वो जो लाइन है वो पास होना इस पर, लेकिन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू a इज हेयर a cos, पता नहीं हमें तो गड़बड़ ही लग रहा है आंसर। देखिए ये cos स्क्वायर नहीं है, cos 2 थीटा होना चाहिए। चलिए वो गलती है प्रिंटिंग की, cos 2 थीटा, वो लोग मैथमेटिक्स वाले होते नहीं हैं, लिखते हैं कहीं कहीं गड़बड़ कर देते, मेरी भी गलती है, आई डिडंट चेक प्रॉपरली। एनीवे वो तो हो जाएगा। तो हियर a cos क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा, सो लाइन। तो मेरे बच्चों ये कहना है, आप ऐसा क्वेश्चन किए हैं लेकिन जरा डिजिटल था, सेक थीटा कॉसेक थीटा नहीं था, ये था जैसे 3 4, ये था 4x + 3y = 6। तो क्या हुआ, उसके जगह पर ये दे दिया तो पहाड़ हो गया क्या? हाँ, एक पहाड़ होता है, बच्चों को सेक कॉसेक इतना पसंद नहीं है, उनको साइन कॉस पसंद है। तो मैं क्या कर दिया, बच्चों को कर दिया इसमें
कि x साइन थीटा प्लस वाई, जरा सा बेटा शॉर्ट में कर रहा हूं, इक्वल टू, ये देखना, अरे 1/cos थीटा 1/sin थीटा x साइन थीटा प्लस वाई cos थीटा, नीचे का जो एलसीएम था वो ये साइन थीटा। तो ये आप कहिए कि नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आएगा? आप जरा एक लाइन यहां पर मेहनत करेंगे ना, x अपॉन, देख ले, नहीं करूंगा, x अपॉन cos थीटा प्लस वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए, एलसीएम निकाला, उधर राइट चला गया। मतलब तो क्यों किया सर आपने, आपको क्या जरूरत थी ये करने की? अरे भाई आप सेक थीटा कोसेक थीटा से इतने फ्रेंडली नहीं हैं जितना कॉस थीटा साइन थीटा, इसलिए मैंने किया, नहीं तो मैं उससे भी करता, लेकिन ये इससे फ्रेंडली हैं और आसान भी पड़ेगा, एक आध स्टेप हमारा बच जाएगा। अब कह रहा है कि परपेंडिकुलर मुझे चाहिए इस पर, अरे उस पर चाहिए था तो वही चीज यहां पर बन गया ना। तो हम परपेंडिकुलर के लिए क्या कर देंगे, y का कोफिशिएंट x को दे देंगे, x का कोफिशिएंट y को दे देंगे, बीच में प्लस है इसलिए माइनस, इसलिए x cos थीटा माइनस y साइन थीटा। आहा, ये दुनिया और का पहाड़ सरीका है, कितना प्यारा लगता है ना, उसको हटा करके लैम्डा कर दिया। और कुछ भी हो, मैंने दिखलाया था ना, कितना बड़ा हो उसके जगह पर लैम्डा। ये cos थीटा इसको दिया, वो साइन थीटा उसको दिया, प्लस था इसलिए माइनस किया। लेकिन उसके बाद ये लैम्डा हमारे रास्ते में आ रहा है, कह रहा है जब तक मुझे नहीं हटाएंगे मैं क्वेश्चन ही नहीं बनूंगा। तो ले भाई, क्या है लैम्डा के लिए? तो कह रहा है करिए ना, ये लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट मतलब इनको ये खुश करेगी, कहेगा मैं आ गया तुमको सेटिस्फाई करने के लिए, तो करो ना सेटिस्फाई। x की जगह पर a cos क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस a साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। ले भाई, लैम्डा इतना परेशान कर रहा था, और सुंदर कर दो इसको, a cos 4 थीटा माइनस a साइन 4 थीटा। आंसर हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सुंदर बनाना चाहता हूं। यह मत सोचना कि मैथमेटिक्स हमेशा एक खूसट सब्जेक्ट है, इसको भी सुंदरता पसंद है। तो सुंदरता क्या पसंद है, ये क्या कर दिया, a cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू लैम्डा, और फिर कर दिया a कॉमन लेकर के उसको फैक्टराइज कर दिया, a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मैंने माइनस पहले लिख दिया प्लस बाद में लिखा, एंड दैट इज इक्वल टू a cos 2 थीटा इंटू 1, सो लैम्डा इज a cos 2 थीटा। ये कहां से cos 2 थीटा आ गया? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मेरे बच्चे समझ गए, वो तो फैक्टराइज किया है, ये तो बात समझ में। एक यस, एक cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन ट्रिग्नोमेट्री। आप 3 रिजल्ट सोचिए, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो रख दिया। और तब लैम्डा इसको दीजिए, भैया बहुत व्याकुल थे तुम, है ना, ये लैम्डा के लिए। तो लैम्डा जो है हम उसको दे दिए कि ले आओ, खुश रहो। तो क्या आंसर हो गया, x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू a cos 2 थीटा। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं करूंगा, एंड दैट्स व्हाई आई केम हियर। नाउ कम टू दिस वन। अब आइए साहब, यस, हाँ चलिए नीचे, हाँ अच्छा क्वेश्चन तो दिया ही नहीं, ये तो क्वेश्चन है यार, इसलिए ऐसा हो जाएगा। हाँ 8वां, चलिए नेक्स्ट।
आंसर्स दिया हुआ एक्सरसाइज आपके लिए है, करेंगे हम। एक्सरसाइज का भी आंसर्स आपको देंगे, सॉल्यूशंस देंगे जहां आप पूछेंगे, लेकिन पहले तो ये। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और आगे देखें सर क्या क्या है यहाँ। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस फिर आएंगे हम, और उसके बाद से नेक्स्ट, हाँ ठीक, नेक्स्ट 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 ये है। और ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे उसके बाद से। हाँ, पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, अभी आई विल कम टू द बोर्ड एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। और सॉल्व एग्जाम्पल्स है, बड़ा अच्छा सॉल्व एग्जाम्पल्स है यहाँ पर। और फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल्स में आ जाऊँगा और देखूँ क्या क्या है। The point -2 and the distance from the origin is 1 unit. Find the straight line passes through the point -1, 2 and the distance from the origin is 1 unit. Find the equation, निकल जाएगा। हाँ जी, और नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट आऊँगा वहाँ से। फिर मैं ये देख रहा हूँ कि एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, तो लाऊंगा क्वेश्चन, है ना। चलो, तो अब मैं बोर्ड पर आ रहा हूँ, है ना, बोर्ड पर आ रहा हूँ। और फिर बोर्ड पर आने के बाद से ये यहाँ से हम फिर, हाँ यस, हटा देंगे। राइट, आई कम टू दिस। I am having 15 minutes more to this class. This is the 6th day for coordinate geometry, straight line. I can once more revive whole if it is not clear, but let me see first. एक कह रहा है, हाँ? एक तो ये करना चाहिए इसको, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, एक लाइन है। दूसरी लाइन इट शुड बी पैरेलल टू दिस ना, तभी ना होगा, तो उसका भी a और b तो सेम होगा। ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0, इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए। मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं कि हमारे बच्चे क्लियर हैं कि ये दो लाइंस इसलिए a और b है क्योंकि इनका स्लोप क्या होगा, -a/b, इनका स्लोप होगा -a/b। सो टू लाइंस, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट द टू पैरेलल लाइंस, लेकिन इनके कांस्टेंट्स बदले हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच का देखो, तो ये दो लाइंस हैं, यहां पर कोई पॉइंट है, से इट इज ओरिजिन, कोई जरूरी नहीं ओरिजिन लूं मैं, कोई भी पॉइंट, लेकिन मेरे लिए ओरिजिन अच्छा है। तो यहां से एक लाइन ये है, ये डिस्टेंस है पी क्यू, और फिर उसके बाद ओ कर दूं ताकि आपको अच्छा लगेगा ओरिजिन के लिए, पी, और फिर उसके बाद से यहां से, हाँ क्यू, उसी पॉइंट से। तो हमारी तो डिस्टेंस होगी जो इन दोनों पैरेलल लाइंस की, ये हो गए ना बेटा, ये I put it here with red हमारे लिए। तो ये होना है ना, ये डिस्टेंस पी क्यू। तो I should find the distance from origin to one line, distance from 0 0 to first। तो क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज ओपी,
and distance from the second line, that is 0 plus 0 plus d upon under root a square plus b square. This is OQ. लेकिन हमें चाहिए PQ. OQ निकला, OP निकला, लेकिन हमें चाहिए PQ. So PQ is equal to OQ minus OP. That is C minus D upon under root A square plus B square. अब ये प्लस हो चाहे माइनस हो, यानी एक डिस्टेंस मान लो आपको पता ही नहीं किधर से हम नाप रहे हैं, तो एक 6 हो और एक 8 हो, तो 6 माइनस 8 करो या 8 माइनस 6 करो, वो प्लस आवे चाहे माइनस आए, दैट विल बी मॉडुलस वैल्यू C माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ऐसा करके हम दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे. बेटा एक और काम होता है, हम